Number two, why you need to come into your local church? दूसरी बात, क्यों आपको कलीसिया के प्रति समर्पित रहना है? You need to know your responsibility in the world. ताकि आपको इस दुनिया में आपकी जिम्मेदारी का आपको पता चले. You know, the moment you accept Jesus Christ as your personal savior, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लेते हो, you are the child of God. आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो. When you are the child of God, जब आप परमेश्वर की संतान हो, you must remember that you have a responsibility. तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है. Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, as the Father sent me, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, I am sending you. मैं आपको भेजता हूँ. As Father sent Jesus Christ, जैसे पिता ने यीशु मसीह को भेजा, Jesus Christ sent us to this world. यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में भेजा है. So that's why we feed the hungry. इसीलिए हम भूखों को खिलाते हैं. That's why we provide the clothes to the clothless people. इसीलिए हम लोग नंगे को पहनाते हैं. From our salary, from our earning, we give it to charity, to the church, so that the church and charities can help the people. इसीलिए हम अपने कमाई से हम जो कमी घटी में है उनके लिए हम मदद का हाथ बढ़ाते So हैं. we have a responsibility. तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है. The Bible clearly says, परमेश्वर का वचन कहता if है, you are a Christian, अगर आप एक क्रिस्ती व्यक्ति हो, if you say that I love Jesus, अगर आप कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, you are the light and the salt of this world. आप इस जगत की ज्योति और नमक हो. So we have a responsibility to the world. तो इस जगत के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है. So that's why God has blessed us with the spiritual gifts. इसीलिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक दान वरदान दिए हैं. Third reason why you need to come into local church, और तीसरी बात, क्यों हमको स्थानिक कलीसिया में समर्पित रहना you चाहिए? need to come to local church आपको स्थानिक कलीसिया में जाना चाहिए to receive the God's word. और परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के You लिए need to come to local church every Sunday आपको हर रविवार स्थानिक कलीसिया में जुड़ना चाहिए to hear from the और Lord. परमेश्वर से सुनने के लिए. You know, every Sunday I go to church. हर रविवार मैं कलीसिया को जाता हूँ. Every time the man of God speaks the word of God, हर बार जब परमेश्वर का सेवक जब परमेश्वर का वचन से बात करता I है, get so excited. मैं कितना उत्साहित हो जाता हूँ. You know, that keeps me fire for a whole week. और वो पूरा हफ्ता पर मेरे अंदर एक आग जला के रखता है. But you will say, to hear the word of God, why I should go to local church? लेकिन आप बोलोगे कि वचन सुनने के लिए मुझे कलीसिया जाने की क्या जरूरत You है? know, I will not brush my teeth. I'm so tired. I will not take shower. I will open my computer, connect my TV to Wi-Fi. I'm going to watch online. मैं ब्रश नहीं करूंगा, मैं नहाऊंगा नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सिर्फ कंप्यूटर पर ऑनलाइन सर्विस देखूंगा. So online church is going to like a restaurant. ये ऑनलाइन चर्च ऐसा है कि जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो. When you go to restaurant, they come and give you the food menu. जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो वहाँ पे मेन्यू लेके आते हैं वो लोग खाने का. You choose what you want आप उसमें से जो आपको चाहिए आप पसंद करते हो and then you order. और आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो. The cook person will not come and say, don't order this. This is not good for your health. He will not say that. खाना बनाने वाला आपको आके सलाह नहीं देगा कि कौन सा व्यंजन अच्छा है बुरा है आपके So लिए. you order what you want. जो आपको चाहिए वो आप मंगाते हो. The fourth reason why you need to commit to local और church, चौथा कारण क्यों आपको कलीसिया के प्रति समर्पित रहना है? you need a place where you can come and worship God. तो आपको ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ पर जाके आप परमेश्वर की आराधना कर सको. So there are two kinds of worship. दो प्रकार की आराधना है. One is individual worship. जो एक आराधना जो हम अकेले में करते हैं, Another one is collective worship, corporate worship. और दूसरी जो आराधना है जो सबके साथ मिलके करते हैं. Many people will say, why I should go to church to worship? कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों मुझे आराधना करने के लिए कलीसिया जाने की जरूरत है? I'm going to worship God myself, alone in my house, on my bed. मैं अकेले मेरे बिस्तर पर बैठकर परमेश्वर की आराधना करूंगा. God doesn't see whether it's a bedroom or a toilet or in the church. I'm just going to worship wherever I am. परमेश्वर जगह नहीं देखता, मैं जहाँ पे भी हूँ मैं वहां से आराधना करूंगा. That is wrong? क्या ये गलत है? No. ये गलत नहीं है. Oh, you can worship God wherever you are. आप जहाँ कहीं भी हो आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हो. And God takes the throne of
when you worship, God takes his throne through your worship. अब हमारे आराधना में परमेश्वर विराजमान होता है. I am not criticizing you worshiping alone, मैं आपका अकेले आराधना करने के बारे में मैं किसी की बुराई नहीं कर but रहा. I have come to tell you there is something beauty when God's people come together and worship God. लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस बात में बहुत ही खूबसूरती छुपी हुई है कि जब परमेश्वर के लोग आके इकट्ठा आराधना करते How हैं. last few Sundays back I was here, and this Sunday I was here. What an amazing worship is here. कुछ रविवार पहले मैं यहाँ पर इस कलीसिया में था और आज मैं इस कलीसिया में तो हूँ और कितनी अच्छी आराधना So हुई. there is something beauty when God's people come and worship God collectively. जब परमेश्वर के लोग आकर एक साथ में प्रभु की आराधना करते हैं उसमें एक खूबसूरती छुपी हुई So है. when you come and worship collectively, जब आप साथ में मिल के आराधना करते हो oh, you will see God working in your life. आप देखोगे परमेश्वर का काम आप अपने जीवन Oh, में you will देखोगे. see the healing of God in your life. आप चंगाई को देखोगे अपने You जीवन will में. see the chains of your life, difficulties losing. आप देखोगे आपके बंधन जो भी है So कठिनाइयां दूर as होते हुए as you देखोगे. worship God collectively, जब आप परमेश्वर की आराधना मिल के करते हो you will see breakthrough in your life. आप बेदारी को देखोगे अपने जीवन में एक बदलावट को देखोगे. So I'm going to conclude my message. अब मैं अपना प्रचार समाप्त करूंगा. We have to commit ourselves to the local church. हम एक स्थानिक कलीसिया के प्रति समर्पित रहना चाहिए. You may give 100 excuses why you don't want to come to church. आप 100 बहाने दे सकते हो क्यों आप कलीसिया को नहीं जाना But चाहते. in my sight, all those excuses are invalid before God. लेकिन मेरे हिसाब से सारे बहानों की कोई कीमत नहीं है परमेश्वर के सामने. Leave the differences aside. वो सारे जो भी वाद विवाद है या जो भी है उनको आप अलग रखो Commit yourself to a local church. और अपने स्थानिक कलीसिया में आप एक समर्पण के साथ जुड़ो. Instead of giving excuses and running away, बहाना बना के भागने से अच्छा be in the church and make a difference. और कलीसिया में होकर आप एक बदलावट को लेके आओ. If you run to different churches, it's not going to do any good for you. अगर आप अलग अलग कलीसिया में भागते रहोगे तो ये आपके लिए किसी भी फायदे का नहीं होगा. You feel like I'm taking the stones and throwing at you, but I'm speaking the truth. लेकिन अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको पत्थर मार रहा हूँ लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ. Keep changing the churches doesn't do any good to you. अगर आप कलीसिया बदलते रहोगे तो ये किसी फायदे का नहीं है आपके लिए. Times such as this, God has placed you in the tent church. परमेश्वर ने आपको यहाँ पर इस कलीसिया में रखा.